Mukherjee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning one and all. India first attained Purna Swaraj on 26 January 1930. The other name for Swaraj is independence. January 26 was the date when India was declared free from the British rule. The constitution came into existence in 1950. 3 years after the independence, the constitution was formed. B.R. Ambedkar was one of the foremost leaders under whom the constitution was formed. People from different caste, creed, religion celebrate this day together. This day we celebrate the sacrifice of our freedom fighter. Thus it is an essential day for the Indian people. This day signifies the making of the constitution. Any nation can progress only if law of the land is in hands of its own people. That is, if the people get to choose their respective and have power to peacefully overthrow those who do not perform well. Today we all are here to celebrate our 73rd Republic Day. I, Jamila Yunus Mukherjee, behalf of Yunus Mukherjee and Company and Mufti Bilal's Arabic Academy, welcome you all. So please be seated comfortably and celebrate this day with us. आजादी की कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक बूंद लहू की तब तक, बची है जो एक बूंद लहू की तब तक, भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। नाउ आई विल कॉल मौलाना जिलानी फॉर किरात। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Vigilance and Academics in Dr. D.Y. Padley University, Pimpri, Pune. I am very happy to announce here that Yunus Mukherjee was my neighbor. Actually, he was staying on the 8th floor, I was on the 2nd. So a lot of gap was there, but the gap is totally reduced by watching his activity, today's activity, particularly on the very morning of the Republic Day. His ideas and his patriotism can be seen here. I am really very happy that such a programs are being, or such a program is conducted by Yunus for all the students and his friends. I would also like to request Yunus that
small programs frequently should be organized in your class, because we are not going to make or cultivate only a citizen, but we want a citizen who is a patriotic, who loves his country, who loves his state, who loves his family, who loves everyone, his friends and all. This is our country, this is our nation, and this idea can be cultivated only by, right from, teaching the little ones, what you call the students. We have to understand, particularly one drama that was portrayed on the Gachi of this building. It was a very wonderful, very innovative. I liked it very much, and it is required now. It is required now because politics, it has hampered our country always. I am telling you. But the army and the police, these are the only two faculties of the government which are just making India unique. I am telling you, only army and police force. If the government is going to do something wrong, retired police officers and army officers, they are also asking the Prime Minister, even the President of India also, that you are doing something wrong here. So, uniqueness of our country is we are one. We are Hindu, Muslim, Dalit, whatever the Christians and Sardarji, Punjabi, these all we are one. So now, my last request to all, now everybody is a very phone friend. We are supposed to understand what is going on the social media. That is very important, because as far as the police department is concerned, we are too much worried of the cyber crimes now. What is happening of the cyber crimes and how our minds are polluted. We are being polarized. Our minds are polluted by these social medias and various posts. Somebody is posting against the Muslim, somebody is posting against the Hindu, somebody is posting against the Dalits. It's not good thing. We are one. And it is the strategy of the politicians only, I am telling you. Because they want to capture the power. Whether that is the Congress or the BJP or the NCP, whatever it may be, they want to capture the power. That's why these all polarization is being made. But if we are going to cultivate and teach our younger students like this, naturally this whatever the cyber bomb that is everybody, we are just catching on WhatsApp and these all things, we are not supposed to go for. आप समझ रहे ना कुछ? तो सोशल मीडिया पे जो भी कुछ आ रहा है उसको please just don't take it seriously. That is the strategy of all the politicians in order to capture the power. जैसे इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं तो वैसे polarizing post बहुत आ जाते हैं. But we are one. There are so many friends of mine. I got maximum Hindu friends. I got maximum Dalit friends, And whenever I am sick or I am in problem, they rush for my help, So that is the thing I want to tell you all. Any Hindu, my friend is something, he has a problem, I am the first person to go and rush him. Okay? So please understand these all techniques. We are Indians and we want to be Indians. And whatever is now the picture, Yunus was talking regarding his, that is his mind he has just revealed. And what he was telling, that nowadays the society, the community, our state, our country is being polarized. It is being divided. And that is divided deliberately in order to gain the power. I am telling you. Okay? So, just avoid it and just go by that one. The very, power that is given to us by great Mahamana Dr. Babasaheb Ambedkar, we have to preserve it. And the greatest treasury, the greatest holy book for our democracy is the Indian Constitution, as Yunus has told. So please, just treat everyone friendly. Don't consider what is he, who is he, what religion he belongs to. That's not important. Important thing is that how much help we are going to do for him. That is very good. And another thing I would like to advise you, being that I am the most senior police cop now, because I also taught so many institutions. मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं दुनिया घूम के आ चुका हूँ. I have just traveled each and every country of the world. I had been to all European countries, USA, Canada, then Australia, New Zealand, Japan and China and South Korea. Everywhere I had been. मगर दुनिया में सबसे अच्छा देश हमारा है. Most beautiful country is ours, what I am telling you. क्योंकि
7-8 दिन रहने के बाद में दिल नहीं करता कि वहां पर रहे. We are just having rushed back to our country. I am telling you. हम स्विट्जरलैंड में भी रहेंगे, but no, all variety of the beautiful people, beautiful islands, beautiful food and everything beautiful. That is our India. तो my dear friends, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि you are the a citizen of this beautiful country. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत. सर्वात प्रथम मी सरांना धन्यवाद देतो. आपले आजचे चीफ गेस्ट आहेत आणि माझे हे बंधू भगिनी, हे छोटे चिमुकले. खूप आनंद होतो की सरांनी इन्व्हाइट केलं आणि मी त्याच्या पात्र आहे असं समजतो. आज आपण पूर्ण भारत देश आपला 73वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. प्रजासत्ताक दिन का साजरा केला जातो? सॉरी, मराठी समजते सर्वांना? ओके. प्रजासत्ताक दिन किंवा गणतंत्र दिन आपण का साजरा केला जातो या मागचं आपल्याला उद्दिष्ट माहिती पाहिजे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 15 ऑगस्ट आपण साजरा करतो, ज्या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. पण प्रजासत्ताक दिन का साजरा केला जातो? तर आपल्या भारत देशाला स्वतंत्र आपलं संविधान नव्हतं किंवा जो कायदा तो आपल्या देशामध्ये कायदा नव्हता आपला देश चालवण्यासाठी. त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अधिपत्याखाली एक कमिटी स्थापन झाली आणि त्या कमिटीला 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस लागले भारताचं संविधान लिहायला. आणि 24 जानेवारी रोजी ते पूर्ण झालं 1950 साली. आणि भारत देशाला जे संविधान चालू करायचं होतं म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्या भारत देशाला हे स्वतंत्र संविधान, जगातलं सर्वात मोठं जे हाताने लिहिलं गेलं, हे सर्वात मोठं संविधान जगातलं आपलं भारताचं आहे. आणि या दिवसापासून प्रजासत्ताक दिन किंवा गणतंत्र दिन याचा अर्थ असा की कायदेशीररित्या आपले भारत देशवासी हे संविधान रित्या पूर्वक स्वतंत्र झाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं 47 साली 15 ऑगस्टला. पण आजच्या दिवसापासून संविधानरित्या आपण जगायला शिकलो. आपल्याला संविधानानं आपले मूलभूत हक्क जाणून दिलेत, म्हणून आपण हा दिवस आता साजरा करत असतो. माझी थोडक्यात ओळख, मी निलेश जगताप, खेड शोपूर येथील रहिवासी असून मी म्हणजे आता जास्त माझं सांगणं चुकीचं होतं, पण तरी माहिती असावं, थोडं अवगत असावं, त्यासाठी सांगणं गरजेचं आहे. 1999 साली मी माझी रिक्रुटमेंट झाली इंडियन आर्मी मध्ये. त्यानंतर माझं 2 वर्षाचं ट्रेनिंग होतं आपलं बीजी सेंटर बॉम्बे सॅपर्स मध्ये. ते ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर माझी पहिली पोस्टिंग होती जम्मू काश्मीरला. 6.5 वर्ष मी सुरुवातीचे तिथं काढले. आणि त्यावेळी ग्लेशियर 1, ग्लेशियर 2, ग्लेशियर 3 असे 3 पार्ट आहेत ग्लेशियरचे सुद्धा. तसं मी ग्लेशियर सेकंड मध्ये होतो, जिथं आपण एक मूवी, मला ते नाव आठवत नाही, तो डॉग वगैरे ते बर्फावरून म्हणजे पाण्यावरून चालतो, बर्फावरून खाली पाणी असतं, म्हणजे बर्फ जमलेला असतो. म्हणजे अशा ठिकाणी मी तिथं राहिलो. तिथं जास्त दिवस सर्व्हिस करता येत नाही कारण नपुंसकता येण्याची ती भीती असते. मग 18 महिने फक्त तो कालावधी आपण तिथं राहू शकतो. मग जम्मू काश्मीरमध्ये शिकारी पहाडी वगैरे असा आम्ही भरपूर फिरलो. तर त्या सुरुवातीच्या काळामध्ये आमचा प्रसंग असा झाला की 3 आम्ही अफगाणी आतंकवादी मारले होते. आणि हसण्यासारखी गोष्ट अशी की आमच्या फायरिंग मध्ये एक म्हैस ती मारली गेली, जी सिव्हिलियन पॉप्युलेशनची त्यांच्याकडे ते होती. मग त्यावेळी आम्हाला त्या सिव्हिल लोकांचा पण खूप असा त्रास झाला किंवा सामना करावा लागला. किंवा म्हणजे आम्ही जे अटॅक करत होतो त्याच्यामध्ये आम्ही 3 ते अफगाणिस्तानी मारले अतिरेकी. आणि आमचं म्हणजे असा घामोघूम झालेलो, त्यांना खालून शिकारी पाड्यातून वरती कमरेला रस्ते बांधून त्यांना आम्ही ओढत आणलं होतो वरती मारल्यानंतर. पण ते ज्यावेळी म्हैस मेली त्यांची लोकांची,
त्यावेळी पण आमच्यावर दगडफेक झाली, म्हणजे ते पण असं म्हणजे असं एवढं सहन करावं लागतं. त्यानंतर माझे तवांगला चायना बॉर्डर जे आपलं चायना भारतचं जे दगडफेक वगैरे झाले, मारामारी झाली, तिथं पण मी तवांगमध्ये पोस्टिंग होतो. नंतर वाघा बॉर्डरला होतो, राजस्थानमध्ये होतो आणि आपला दार्जिलिंग, शिमला म्हणजे अशा ठिकाणी, नंतर भोपाळमध्ये आर्मी वॉर कॉलेजमध्ये या ठिकाणी सुद्धा पोस्टिंग होतो. आणि या 20 वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये म्हणजे खूप छान अनुभव आले आणि खूप मनापासून असं एवढे म्हणजे शब्द नाही दादा, पण जे आपण देश सेवा म्हणतो, ज्यावेळी आपण बॉर्डरवर असतो त्यावेळी खरं जीवन कळतं की बाबा आपण म्हणजे कुठल्या परिस्थितीतून जातो किंवा किती आपल्याला वेगवेगळे वाईट अनुभव येतात. कारण तिथं डोळ्यात तेल घालून अगदी, आणि आर्मीमध्ये बोललं जातं रायफल आपली दुसरी पत्नी. जसं आपण आपल्या पत्नीचा सांभाळ करतो किंवा मुलांचा सांभाळ करतो, तशी ही रायफल आमच्या ते कायम बरोबर असायची. म्हणजे जे 20 वर्षानंतर मी प्रीमेचर रिटायरमेंट घेतली, माझी घरगुती काही वैयक्तिक प्रॉब्लेम, मिसेस आजारी त्यामुळे. पण मला आज जे इथं सरांनी जे म्हणजे अनुभवायला पाहायला मिळालं, अक्षरशः अंगावर शहारे आणणार होतं. हे जे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हे आपल्या म्हणजे देशामध्ये जी आपणच हे तयार केलेलं आहे, रूढी परंपरा किंवा काय, हे सगळे आपण एकच आहोत, पण आपण आपल्यामध्ये समाज निर्माण केले आणि हा जो पेच आहे, हा तिढा निर्माण केलाय, हा आपण तयार केलाय. म्हणजे शेवटी आपण सगळे एकच आहोत, आपल्याला सर्वांना मिळून देश चालवायचा, हे आपल्या देशाचे उज्ज्वल भविष्य आहे. पण याच्यामध्ये आपणच आपसामध्ये लढत राहिलो. जसं सरांनी प्रॅक्टिकल आपल्याला पाहायला मिळालं, याच्यात दाखवलं सरांनी आपल्यामध्ये की आपण एकमेकांमध्ये लढत राहतोय आणि त्याच्यातनं सगळा हा ऱ्हास निर्माण होतो. आपली जी सामाजिक, आपली वैयक्तिक ही जी काही आपली म्हणजे आपण पुढे जायचंय, त्यातनं तो आपला ऱ्हास होतो, आपण मागे मागे जात राहतो. तर आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन, सगळ्यांनी मिळून कुठलंही कार्य, फक्त देश सेवा करतो किंवा आर्मीमध्ये आहे सर, पोलीसमध्ये आहे, म्हणजे तीच एक देश सेवा नाही. तुम्ही एवढं मोठं जे काय कार्य करताय, जे आपलं इथं एवढं मोठं ऑफिस आपलं ITRचं सर, बरोबर ना, इन्कम टॅक्सचं, म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या रूपानं ही एक देश सेवाच आहे तुमची सुद्धा. म्हणजे याच्यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या देशाला पुढे नेण्याचं सामर्थ्य हे तुमच्यामध्ये, ही तुमची खूप मोठी देश सेवा आहे. म्हणजे जरुरी नाही की सैनिकच तिथं सीमेवर असावा, सरांनी आपल्या समाजाचं रक्षण करावं. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींमधून सुद्धा आपण देशाची सेवा ही करू शकतो. जास्त काही मी असा वक्ता नाही किंवा काय नाही, पण खरंच आनंद झाला. सरांनी मला इन्व्हाइट केलं, ही इथे येण्याची संधी दिली, बोलण्याचे 2 शब्द बोलण्याची मला संधी दिली, त्याबद्दल मी तुमचा मनपूर्वक खरोखर पे
मेरे लॉर्ड, बुराई से बचाना मुझको, जो भी बुरे काम है उन सब से बचाओ मुझे। नेक जो रास्ता हो, अच्छा जो रास्ता हो, जो भलाई का रास्ता हो, उस राह पे चलाना हमको। इसके बाद मैं YMC This year we are celebrating our 73rd Republic Day. On this day we are celebrating our 73rd Republic Day. On 26th January 1950, the Constitution of India came into effect. We should understand the importance of this great day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. मेरा नाम है रंगीन मुख्यरी। आज भी जिसका खून ना खोला वो खून ही वो पानी है। आज भी जिसका खून ना खोला वो खून ही वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नफरत भरी है दिलों में, नफरत भरी है दिलों में, निकालो इसे, ना फैलाओ इसे। नफरत भरी है दिलों में, ना फैलाओ इसे। दिलों में कशिश है, दिलों में कशिश है, निकालो इसे। ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, ये हम सबका वतन है यारों, संभालो इसे। दोस्तों, आप सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग अपना बिजी वक्त निकाल के आए, इस 73rd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में शामिल हुए। इंडिया जो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद कोई भी कंट्री चलाने के लिए कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ रेगुलेशंस लगते हैं। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कंट्री को चलाना मुश्किल था। बाबा साहब अंबेडकर इनके नेतृत्व में एक संविधान रचना समिति बनाई गई। इनके जिम्मे दिया गया कि ये संविधान बनाओ।
26 जनवरी 1949 को असेंबली ने इसको पास किया और उसको इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 में। जब रिपब्लिक हम बोलते हैं तो एक ही दिमाग में आना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही लिखित कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा है इंडिया का, 1,45,000 इसके वर्ड है। ये क्या कहता है? इसके कोर प्रिंसिपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो जस्टिस, जस्टिस किस चीज में? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। इसके बाद में इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। फ्रेटर्निटी क्या है? इंडिविजुअल स्टेटस और राष्ट्रीय एकता। अक्सर एक बात हर कोई पूछता है, आप कहां से हो? मैं बोलता हूं अरे मैं अदनी से हूं। फिर कोई बोलता है अदनी कहां है? ये बेलगाम में है। बेलगाम कहां है? कर्नाटक में है। फिर कर्नाटक किधर है? हिंदुस्तान में है। आप लोगों को अगर पूछूंगा मैं तो आप बोलोगे मैं कोंडवा से हूं, मैं सेंगर रोड से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं पुणे से हूं। कोई बोलता है मैं हिंदुस्तान से हूं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये मैं यहां से हूं, वहां से हूं, तभी अपना सपना साकार होगा जब हम बोलेंगे मैं हिंदुस्तान से हूं। हम लोगों ने अपने आप को डिवाइड किया है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने बोल रहा हूं। अगर एक मुसलमान के दिल में हिंदू के लिए प्यार नहीं है, क्रिश्चियन के लिए प्यार नहीं है, ईसाई के लिए प्यार नहीं है, सिख के लिए प्यार नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। अगर एक हिंदू के दिल में मुसलमान के लिए प्यार नहीं है, हिंदुस्तानी सिख के लिए प्यार नहीं है, क्रिश्चियन के लिए प्यार नहीं है, ना वो हिंदू है ना हिंदुस्तानी है। आप बोले कि मैं यहां से रहता हूं, वहां से रहता हूं, अगर बोले कि मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में रहता हूं, तब वो चीज, वो इंडिपेंडेंस असली इंडिपेंडेंस कहलाएगा। हमारा ये वतन सब मुल्कों से अलग है। हमारा ये वतन सब मुल्कों से अलग है। रिलीजन, एरिया, लैंग्वेजेस, हर चीज अलग है। अगर इसकी हम लोग ये जो बनाया है, इसको जोड़ा है, तो एक ही चीज है, वो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर प्रिंसिपल्स है, ये ऐसा है कि ये तो मेजॉरिटी सरकार भी इसको चेंज नहीं कर सकती। और ये किसी न जात पात, हर हिंदुस्तानी जिन्होंने जो भी शहीद हुआ है इस देश को आजाद करने के लिए, जिसने भी खून बहा है, वो कभी नहीं चाहता था कि मेरा हिंदू का राष्ट्र हो या मेरे मुसलमान का राष्ट्र हो। शहीद जो हुए तब किसी का मजहब नहीं था, सब हिंदुस्तानी थे। सबने अपना खून बहाया हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। चंद लोग, चंद पॉलिटिशियंस की वजह से आज दिलों में नफरत बढ़ गई है। अगर हमें चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे,
तो ये जो दिलों में खलिश है हमें निकालना है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सभी इस देश के बेटे हैं। आज अगर आप देखेंगे मोर देन 50-60% लोग 40 साल की उम्र से कम है। हमारे पास जो असेट है पूरे हिंदुस्तान में वो किसी के पास नहीं है। ये कनाडा जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, वो लोग आपको ले लेंगे, खुशी खुशी ले लेंगे। क्यों? वहां लोग 60-70 वर्किंग पीपल जो है वो बहुत कम है, सब बूढ़े लोग हैं। लेकिन हमारे पास आजादी एक ऐसी बड़ी असेट है, 40 के नीचे जितने भी लोग हैं वो 60% है, तकरीबन 60%। लेकिन आजकल हमारे हितों को भड़काया जा रहा है। जो कोड जिसके लिए हमें काम करना चाहिए, जो चीज ध्यान रखना चाहिए, हम सब एक ही माँ के बेटे हैं, हम सब एक ही देश के बेटे हैं। हमारा फर्ज क्या है? पहले हिंदुस्तान, बाद में जो भी रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर हम ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या फायदा रहेगा हमारी जवानी का? क्या फायदा रहेगा हमारी मेहनतों का? तो हमें इस देश के लिए कुछ करना है तो एक ही काम करो, दिलों में नफरतें जो है वो निकालो। हम सब भाई भाई है, हमारा एक ही सपना होना चाहिए, इस देश की मर्यादा, इस देश की आन, इस देश की शान। हम किस चीज के लिए जाने जाते हैं? एकता के लिए जाने जाते हैं। हम एक है। हमारा संविधान, हमारा देश बाकी देशों के लिए एक एग्जाम्पल है। आप देखो, गुजराती एक स्टेट अलग है, कर्नाटक कन्नड़ी अलग स्टेट है, महाराष्ट्री अलग स्टेट है। इन सब को लेके चलना इतना आसान काम नहीं है। हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा रहना, हमारा स्किन, हमारा स्टाइल, हर चीज में अलग है, फिर भी हम एक हैं। कोई यही रीजन है कि संविधान। तो दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि आप जहां भी जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस नाम से मत जाओ। जाओ तो बोलो, गर्व से बोलो, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे रग रग में हिंदुस्तान है। इसके लिए जीना मरना मेरे लिए एक ही है। आज हमारे आर्मी ऑफिसर ने बहुत अच्छी बात बोली, जो हम लोगों ने छोटा सा स्क्रिप्ट किया। लोगों को संदेश यही पहुंचाना था कि खून में कोई डिफरेंस ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, खून एक ही है। खून बताता नहीं कि तू हिंदू है या मुसलमान है। तो हम क्यों बनाने वाले के ऊपर ये कर रहे हैं? ना कहीं गीता में लिखा है, ना कहीं कुरान में लिखा है, ना कहीं बाइबल में लिखा है, ना भगवत गीता में इसमें लिखा है। कहीं पे भी कोई भी कहीं भी नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है। सभी ग्रंथों में एक ही बताया है, ए इंसान, या अय्युहल इंसान, इंसान एक है। हम लोगों ने इसको बांट दिया है धर्म पे, जाति पे, रिलीजन पे। तो ये छोड़ के हमें आगे मेहनत करना है, लोगों के दिलों को जीतना है, वही अपना मकसद रहेगा। और यहां हम लोग इतना झगड़ते हैं, आर्मी में इतने लोग रहते हैं बॉर्डर पे। सर, कहीं आता है ऐसा क्वेश्चन कि तो मुसलमान है, हमारे साथ खाना मत खा, तो हिंदू है, हमारे साथ मिल मत। ये लोग बचा रहे हमारे देश को सरहदों पे जान दे के। ग्लेशियर जहां 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बेचारे ऐसे फाइट कर रहे हैं रात दिन। और यहां हम लोग सोसाइटी में इसको मना है, उसको मना है, इधर जाना मना है, उधर जाना मना है। हम लोग अपने आपस में अपनी चैन सुकून सब भूल जा रहे हैं चंद लोगों की वजह से। आप देखो, कोई भी पॉलिटिशियन गरीब है,
छोटा से छोटा कारपोरेटर भी 10,000 रुपए देता है वोट के लिए। ये किसका पैसा है? ये अपना आम जनता का पैसा है। तो इनके बहकाव में आए बगैर हमें क्या करना है? एक दूसरे के दिलों को जीतना है और देश को आगे बढ़ाना है। मैं यही मेरी बात खत्म करता हूं। आए हुए तमाम लोगों से लोगों की मैं शुक्रगुजार हूं, लोगों का शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। ओ बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी ओ कामना। बढ़ते प्यार का हर कदम, और मीटे ये बैर का भरम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, और लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। Good morning, respected judges and everyone who is here. Today, my name is Simra Yunus Mukherjee. At first, I would like to say you a very happy Republic Day. Today, I am going to give a short speech on Republic Day. Republic Day is an important day for all Indians. We celebrate this day with very enormous and love. Today, here we are present to celebrate the 73 Republic Day. We know that India was independent on 15 August 1950 from British rule. But India was not having its own constitution. India needs its own constitution. Making constitution was a not easy task. It took 2 years, months and 18 days. Freedom fighters like Dr. Rambhao Ambedkar, Dr. Rajiv Prasad, Pandit Nehru, etc. contributed. His contribution gave us strong constitution. We should never forget his contribution. Today we are living in freedom because of their freedom fighters. We should never forget his contribution. Today we are living a happy life.
Thank you for giving me an opportunity here to speak. Jai Hind, Jai Bharat. मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं, मुस्लिम भी मिलते हैं, सिख भी मिलते हैं, ईसाई भी मिलते हैं, और इसी चीज को कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इससे पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश ने हुकूमत की थी, तो उनका दिया हुआ, उनका थूका हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक लॉ था जिसपे जुल्म था, और वो हम लोगों के ऊपर कैसे लागू हो सकता था? हम लोग आजाद हो गए। तो उसके लिए जब असेंबली बैठी, जब लोग बैठे, अब एक धर्म को लेके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता था, एक धर्म को लेके दस्तूर नहीं बन सकता था, कानून नहीं बन सकता था, सबको लेना था, सबको समेटना था। उसके लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए, ताकि सबको सबका हक मिले। तो आज हमें चाहिए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की हम हिफाजत करें। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये मुल्क है सभी का, संभालो इसे। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। एक लॉ जो हमें दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम जाने भी और उनकी हिफाजत भी करें, गैर कानूनी काम ना करें। अगर हम कोई भी लॉ को तोड़ रहे होते हैं तो हम कानून की निगाह में ही नहीं, बल्कि जिन्होंने इस देश को आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनकी रूह को हम ठोस पहुंचा रहे होते हैं, उन्हें तकलीफ दे रहे होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उनके साथ में जितने लोगों ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स मिलके एक लॉ तैयार कर रहे थे, दस्तूर तैयार कर रहे थे। अगर हम किसी कानून को तोड़ते हैं तो उन सब की हम बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इरादा करें कि हम कानून की हिफाजत करेंगे। हमें कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम कहीं जाते हैं, सिग्नल पे जाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि चालू है कि नहीं चालू। हम ये ना देखें कि कैमरा लगा है कि नहीं लगा। हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी है, और ये कानून हमारा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। और यही चीज हमारे इस्लामिक जो किताब है कुरान मजीद, तो उसमें भी है कि आप जिस मुल्क में रहते हो वहां के कानून को फॉलो करना है। सिग्नल नहीं तोड़ने, चोरी नहीं करने, किसी को सताना नहीं है। कुरान में तो एक ऐलान है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स, अगर कोई शख्स किसी का भी कत्ल कर देता है, किसी एक भी शख्स का बगैर किसी गलती के, तो समझो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और इतना बड़ा उसको गुनाह मिलेगा, पाप मिलेगा, इतनी बड़ी उसको सजा मिलेगी। ये कुरान का ऐलान है, अनाउंसमेंट है। तो आज जो ये बुराइयां हैं, ये मुस्लिम में ज्यादातर पाई भी जाती हैं और दिखलाई भी जाती हैं। झूठे मुस्लिम, धोखेबाज मुस्लिम। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हकीकत में वो मुस्लिम ही नहीं है। जिस मुस्लिम एक चीज मानता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली चीज कि अल्लाह, उसके सिवा कोई नहीं। दूसरी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब मोहम्मद को अगर नहीं मानता है, या मोहम्मद के डायलॉग्स, मोहम्मद की टीचिंग्स को नहीं मानता, तो वो मुसलमान ही नहीं। और मोहम्मद की टीचिंग में एक बात है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, अ चीटर इज नॉट अ ट्रू मुस्लिम। धोखेबाज कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये अनाउंसमेंट है कि अगर कोई अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में धोखाधड़ी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मुसलमान नहीं।
उसके बाद वही नबी, वही प्रॉफिट, वही मैसेंजर कहते हैं वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी। और दूसरी जगह वही नबी कहते हैं और कसम खुदा की खाते हैं, तीन बार खाते हैं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं होगा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं होगा। तो जो लोग रहते हैं, जो उनके कलीग से रहते हैं, वो पूछते हैं ए प्रॉफिट, ए मैसेंजर, कौन मुसलमान नहीं होगा? तो वो कहते हैं वो शख्स कभी मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी आदतों से परेशान हो, जिसका पड़ोसी उसकी आदतों से परेशान हो, यानी खुद खा रहा हो बाजू वाले को न खिला रहा हो, खुद अच्छे कपड़े पहन रहा हो बाजू वालों की फिक्र न कर रहा हो, अपने घर में जोर से डीजे बजा रहा है और डीजे में भी अगर वो नाच लगा रहा है, कुरान की आयतें लगा रहा है, कुरान पढ़ रहा है, इतनी जोर से पढ़ रहा है कि बाजू में उसका कोई दूसरा भाई रहता है, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर उसको तुम्हारे कुरान से, तुम्हारी नमाज से तकलीफ हो रही है तो वो मुसलमान नहीं है। ये नबी का अनाउंसमेंट है, नबी का फरमान है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लॉ को भी जानें और उसकी हिफाजत करें, उस पर अमल करें। Assalamu alaikum. A very good afternoon to one and all. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks. I thank our chief guest Amrut Jagtap, who spent time from his busy schedule to grace the occasion. I would like to thank our guests Nilesh Jagtap sir and Barkat Mujabar sir for coming here. I would like to thank entire staff of Yunus Mukeri and company for preparing such a lovely and motivational drama. I would like to thank all the students of Mufti Bilal's Arabic Academy for their performance, speeches and songs. Last but not the least, the organizers who worked hard to make this program successful. With these few thankful words, I take your leave. Thank you. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.